Welcome students to my channel. So in part 1 we have learned about natural numbers, whole numbers, integers, rational number and real numbers. So today we are going to answer an interesting question. Are all numbers are rational? Yeah or no? Answer is no. Today we'll learn about irrational numbers and how to represent the same root 2, root 3, root 5 on the number line. So before that, let's recap whatever we have learned in the previous video. So in order to save the time, I just make the diagram which you are able to see over here. Number systems क्या होते हैं? Number systems 5 टाइप्स के होते हैं. ओके सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 ब्ला 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 एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n. Next is whole numbers. It starts from 0 1 2 3 4 5 6 blah 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 and it is represented by the symbol w. Next category is integers. So integers are positive of the whole numbers and the negative of whole numbers. So if we see on the number line, on the left hand side of 0, negative representation of the whole number is there, and on the positive side, positive representation of the whole numbers is there. So you are seeing whole numbers are included in the integers and integers are represented by the symbol z. Okay. Next category is rational numbers. So rational numbers comes under the category of the integer. I mean it includes integers. Rational number में integers आपके include होते हैं और रैशनल नंबर क्या होता है जो कि हम p y q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें while q कैन नॉट बी ज़ीरो. q is the denominator and denominator can not be 0. So examples 7/2, 1/2, blah blah blah. Now rational number comes under the real numbers. Okay, real numbers also consist of the irrational number. So irrational and rational number both makes the real number. Okay, so irrational number examples are root 2, root 3, pi, etc. Now we say how we represent, what is the symbol for the irrational number. So there is no universal symbol for the irrational number. Clear? So we represent r minus q as irrational number because r is real numbers and rational numbers comes under the real numbers. Rational number real numbers के अंदर आते हैं और r में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं q को तो हमें irrational number का symbol प्रोवाइड होता है. क्लियर? नाउ नंबर सिस्टम इज क्लियर. ओके, नाउ now we move to next part. My question, can all these numbers whatever we read can be represented in the form of p by q? Maybe you answer it as yes or no. Okay, if your answer is yes, then what about root 2? Can we write root 2 as p by q? Yes or no? Let's find out. Root 2. So what is irrational number? I am not going to tell you the definition at the very starting point. I will tell you how we can find out root 2 is the irrational number. Okay. So root 2 को अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट 2 by 1. ग्रेट. तो 2 by 1 जो 2 आपका नंबर है वो रैशनल हुआ या इरैशनल हुआ? क्लियर? इट्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. सो इट्स रैशनल. वेरी मच क्लियर. इट्स रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि p by q के फॉर्म में हमने 2 को रिप्रेजेंट कर लिया है, रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए ये रैशनल नंबर है. क्लियर? Okay, now 0.5. Now
if I can I represent it in the form of PYQ? Yes, 5 upon 10 is equal to 1 upon 2. It's in the PYQ form. Okay, then again it's a rational number. Clear? Now comes next 0.3333 and list go and digit goes endlessly. So what you are saying, non-terminating digits are not ending, it's going infinitely, plus the pattern is repeating. So what we have read in our previous video, previous class, that if digits after decimal are non terminating, ख़त्म ना हो रही हो या रिपीट कर रही हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, तो NTR, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ. तो रैशनल नंबर 0.5 is the rational number because the digit terminates, as well as it can be represented in the form of PYQ. Okay, that's why it's rational number. terminating का क्या मतलब होता है कि डिजिट 0.5 के बाद ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगी, कोई रेपिटेशन नहीं होगा. अगर रेपिटेशन होता है, डिजिट्स एंडलेसली जाते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आते हैं. ओके, सो डज इट रिपीट? यस. डज इट टर्मिनेट्स? नो. तो ये रैशनल नंबर आ गया. ठीक है. नाउ कम्स टू √2. ओके, √2 का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कैलकुलेटर पे, ओके, √2 इज इक्वल टू 1.4142136562, right? And it goes. I ask you two questions. Does the digits after decimal terminates or not terminates? ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, तो क्या हो गई ये? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. रेपिटेशन आपको किसी पैटर्न का दिख रहा है? 414141 ऐसा भी नहीं दिख रहा, 414 ऐसा भी नहीं दिख रहा, 444, कहीं पे भी आपका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग. ठीक है, नॉन रिपीटिंग. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है. तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हुआ? क्या डिजिट्स एंड हो रही हैं? नो, नॉन टर्मिनेटिंग. सेकंड, क्या रिपीट हो रही है? नो. तो दिस प्रूव्स इट एज इर्रेशनल नंबर. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर दैम. ओके, सो till now clear. Now we will go with the representation of the √2 on the number line. Okay, so before that we have to do one exercise, Pythagoras theorem. So maybe some of you well knows Pythagoras theorem. If not, don't worry, I will let you know, tell you. So Pythagoras theorem क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस, लेट्स से इट्स AB, इट्स ऑफ 1 यूनिट. ठीक है, और आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला. परपेंडिकुलर आप कैसे डालते हो? ये आपका प्रोटेक्टर होता है. ओके, यहाँ पे आपने लिया और 90 डिग्री पे से मैप करा. ठीक है, सो इसको आपने ज्वाइन करा. ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ तक 1 यूनिट ले लिया.
and then we connect it to this. So this is 90 degree, this is the right angle triangle because there is base and we put the perpendicular on the base and we connect this to A to C. So AB is 1 unit, BC is 1 unit. What Pythagoras theorem says? AC square is equal to AB square plus BC square. जो सबसे बड़ा वाला साइड है जिसे कि हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं वो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है. तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1. AC इज इक्वल टू 2. AC इज इक्वल टू √2. तो हमने देखा कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कि बेस है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का, कैसे हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नाउ वी विल गो अहेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 on the number line. So if you see √2 on the number line, so the exercise I did, this is the just I mentioned for time saving. Okay, √2 is 1.41421356. Let's represent it on the number line. So first of all I take the ruler and I स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो कहीं तक भी जा सकती है. ठीक है, देन जस्ट वी पुट 2. हम रूलर पे एक ही लेंथ का कट करेंगे. पहले हम 0 रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है, और 0 से दोनों साइड में इक्वल करेंगे. ठीक है, बिल्कुल इक्वल, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 करेगा. फोर तक ही लेते हैं अभी हम. ठीक है, हेयर ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. करेक्ट. नाउ √2 को हम पाइथागोरस थ्योरम के अगर हम देखें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 0 से 1 का हम 1 यूनिट एज्यूम करते हैं. ठीक है, 1 यूनिट. देन हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे. ठीक है, 1 BC स्क्वायर के लिए. ठीक है, ठीक है. अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे. डैश लाइन से करेंगे ताकि हम 1 यूनिट को अभी हमें मेज़र आउट करना है. ओके, डैश लाइन से. अब हम कंपास से, क्योंकि अभी हमारा ये 1 यूनिट के बराबर है. करेक्ट, देखिए 1 यूनिट के बराबर, तो हम इसे कट आउट कर लेंगे. ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया. नाउ वी विल डार्क इट आउट. and join it. Join this point to this. Clear? Clear? So it's 1 unit. ठीक है, and 1 unit and it's come out to be √2. You are seeing AC.
let's name it A, B, C. AC comes out to be root 2. Now, how we'll plot this on the number line? We put on our compass on 0 and measure the longest part, hypotenuse, and then we cut out. So this is what comes, this is root 2. अब हमने रूट 2 को देखा 1.41 समथिंग आ रहा है, यानी कि 2 और 1 के बीच में है, 1.5 से कम है. तो आप देख सकते हो कि रूट 2 जो है एग्जैक्टली नंबर लाइन पे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या 1.4141 को. कोई गैस वर्क तो यहाँ पे चल नहीं रहा है कि हम एज्यूम कर लें नहीं अरे भाई यहाँ पे रूट 2 आएगा, अरे नहीं यहाँ पे आएगा. तो हमें प्रॉपर एक बेस के थ्रो चलना पड़ता है. बेस है पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी विल लर्न अबाउट द रूट 2. रूट 3 यू हैव लर्न रूट 2 क्लियर. 1 यूनिट चाहे आप ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके ऑन द नंबर लाइन, और उसको जो आपका हाइपोटेनियस है उसका मेज़र करके कंपास से, और आपको फॉल करना है जो आपकी नंबर लाइन है, तो वह एग्जैक्ट आपको पोजीशन बता देगी रूट 2 कहाँ आता है. अब रूट 3 को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक्सरसाइज कर रखी है, जो कि आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है, तो 2 + 1 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 + 1 3 AD इज इक्वल टू रूट 2. तो अब हमें इधर आपको दिख रहा है कि हमें रूट 2 को बेसिस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है रूट 2 और उस पर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जहाँ पे कि हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मीट हो रहा है, वहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर डालने के लिए अगेन 90 डिग्री का वो लेंगे मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड जॉइन इट. सी जॉइन इट. C point to this. I keep it as dashed one because we have to cut 1 unit, exact 1 unit on this. Okay, clear? Any questions? You can reach out to me in my comment section. Mention your queries, doubts in the comment section. Okay, so exactly हमें 1 unit लेना है. See, this is 1 unit. Now we will cut out our hair. ठीक है, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे D पॉइंट. क्या कहेंगे? इस पॉइंट को D, और इसको हम दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. दिस इज 1 यूनिट, रूट 2 यूनिट, and this comes out to be root 3. Again, now we with the help of compass we measure this. 0 से स्टार्ट करेंगे, D पर फॉल करेंगे. ठीक है, और इसको हम गिरा देंगे. ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका रूट 3, और रूट 3 हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स? 1.73, यानी 1.5 से ऊपर. तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट को, तो ये आपको 2 के करीब लग रहा होगा और 1.5 के बाद लग रहा होगा. ये डार्क लाइन आप इसे वॉच करेंगे ना, ये वाली लाइन को, और आप मेरे पॉइंट्स को देखेंगे, ये वाला 1 से लेकर 2 में रूट 2 आपका करीब 1.5 से कम आया है, जो कि 1.4142 समथिंग ब्ला ब्ला होता है, और आपका रूट 3 होता है 1.73, यानी 1.5 से ऊपर. नाउ वी कम्स नाउ, अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है
रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। आई गिव यू हिंट, रूट 5 के लिए आपको हाइपोटेनियस ही, आपको ये पाइथागोरस थ्योरम ही आपको यूज़ करनी है, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करनी है। जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो रूट 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसे आप कैसे निकाल सकते हो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का कर, एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। तो आपको एक हिंट है कि जो आपका रूट 5 आएगा वो 2 के बाद आएगा, आपको 2 को बेस लेके चलना है, ठीक है। 1 का परपेंडिकुलर डालना है 1 यूनिट का, और आपको उनको ज्वाइन करना है। और आप देखिए आपका एग्जैक्टली 2 के बाद यानी 2 डिजिट के बाद आपका आपका अर्क गिरना चाहिए और 2.5 से कम होना चाहिए। यानी कि अगर हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, तो 2.5 से आपका काफ़ी कम आएगा, 2.2 के आसपास आना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है, या प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगर नहीं हो पाती है फिर भी हम एक शॉर्ट वे में उसे आपको डिस्क्राइब कर देंगे। नाउ कम टू द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which I ask you, or so that you will be clear about the rational or irrational numbers. So if I say root 2, you saw it's root 2, then it's irrational number, but this assumption is totally wrong. Under root 2 the number that comes is not perfect, is not to be non-perfect square. So if I say 36, so you saw square root and you then say 36, yeah, it's irrational number, but no, it's the perfect square, यानी कि ये 6 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6 स्क्वायर यानी कि बाहर आया तो 6 हो गया, और 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6/1 PYQ के फॉर्म में हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो PYQ फॉर्म क्या होती है, रैशनल नंबर। तो 36 जो आपका होगा वो इरेशनल नहीं होगा, रैशनल होगा, क्योंकि आपका PYQ फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो फॉर योर एक्सरसाइज you can find out whether 49 is irrational or rational. We will give answer in the next video. You can come out with your answer in the comment section. So it is rational. Rational we represent with what? Tell me. Q. It's irrational, or R minus Q means irrational. ये rational है या irrational है? ऐसे ही रूट 3। अब एक हम लोग और कवर करते हैं, हमने रूट 2 देखा, रूट 36 देखा, रूट 49 आपको एक्सरसाइज में है, यू हैव टू आंसर इट आउट। रूट 3 यू हैव टू आंसर इट आउट वेदर इट्स इरेशनल और रैशनल। वैसे मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया, रूट 3 आपको बताया, रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाया, और उसको मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी उसका शो करा। तो उसमें क्लियरली मेंशन था, ना तो डिजिट्स एंड हो रही हैं डेसिमल के बाद, ना ही रिपीट हो रही हैं। तो इट्स क्लियर दैट इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग, जो कि मैं चाहूँगी एक्सप्लेन करना आपको। ठीक है, रूट 3 तो मैंने ही आंसर दे दिया। पाई इरेशनल है या रैशनल है? ठीक है, और 22/7 रैशनल है, इरेशनल है? तो हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि पाई एंड 22/7 सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई का अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन तो कितना होता है, 22/7 का फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो या फिर क्वेश्चन मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी पाई और 22/7 को लेके। ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये रहता है कि पाई और 22/7 सिमिलर हैं, बट ऐसा नहीं है, जो कि हम पहले देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो 22/7 का अगर आप कैलकुलेटर से देखें, 22/7 is equal to this form. Okay,
दिस फॉर्म। एंड पाई को मैंने लिख लिया है, आप पाई को गूगल या जैसे भी करके देख सकते हैं, पाई की ये वैल्यू होती है। तो हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे डेसिमल के बाद 22/7 में। एक तो ये PYQ के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये तो वैसे क्लियरली कहता है कि भाई ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन आप देखोगे इधर, मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं ये वाला, अब देख रहे हैं 142857, 14857, ठीक है, 142,857, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक तो डिजिट्स आपके एंड नहीं हो रही हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग इज़ कि कहीं एंड नहीं हो रही है। दूसरा आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो क्लियरली दिस आइडेंटिफाइज दैट 22/7 इज़ रैशनल नंबर। नाउ कम्स टू पाई। पाई में आप देख रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, NTR इसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सॉरी, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रही है तो उसे नॉन टर्मिनेट। लेकिन आप कहीं पे देख रहे हो, चाहे 4 का सेट बनाओ चाहे 2 का सेट बनाओ, कहीं पे पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR। तो ये NTNR क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज़ योर इर्रेशनल नंबर। तो कोई भी चीज़ पे आपको एकदम से कंक्लूज़न पे नहीं पहुंचना है कि √2 है तो भाई इर्रेशनल है। आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, या फिर आप देखिए कि रूट के अंदर जो भी डिजिट आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती, अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्या 64 आपका इरेशनल है या रैशनल है? तो हमें 64 इतना हमें दिख रहा है कि 64 क्या होगा, बताइए, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सो ये 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है, ओके, ठीक है। तो क्या आ गया? सिंपल सा 8 का स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। इट कम्स आउट टू बी 8 and 8 can be written in the form of PYQ 811. It clearly identifies that it is a rational number. PYQ के फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। नाउ सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन, 0.4444 एंड द लिस्ट गोज एंडलेसली। एक तो डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे आपको रेपिटेशन दिख रहा है? दिख रहा है 4 4 4, तो ये रिपीटिंग, देन इट आइडेंटिफाइज दैट इट इज रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर हुआ। अब हमारा एक और क्वेश्चन नेक्स्ट सेट आता है, मैं आपको कहूँ कंफ्यूज करने के लिए, 0.101100001000 डॉट डॉट डॉट, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिजिट्स डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं होंगी। क्या इधर आपको कहीं पे पैटर्न रिपीट दिख रहा है? 10 को कोशिश करिए, नहीं, 10 के बाद 10 है, ये 10 है, फिर इसके बाद गैप दिखा, तो ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हुआ आपका? आगे ये आपका रैशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि ना तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हुआ। क्लियर? डायग्राम के फॉर्म में अगर आप देखोगे, मैं इधर रैशनल लिखती हूँ, ठीक है, और इधर इर्रेशनल लिखती हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे रैशनल के केस में टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.5 5 पे ही एंड हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। दूसरा केस जो हमने पढ़ा 0.4444 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया हमारा? रैशनल।
और इरेशनल में हमने क्या देखा था, एक तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं उसे वॉच करना, और फर्स्ट की स्क्वायर रूट के अंदर जो आएगा नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। हर स्क्वायर रूट नंबर जो होता है आपका इरेशनल में नहीं आता, आपको वॉच करना है कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेकंड चीज़, आप अगर रूट 2 को देख के नहीं कह सकते, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए। डेसिमल एक्सपेंशन में आप देखेंगे कि अगर कोई भी पैटर्न है, आपका एक तो डिजिट्स एंड नहीं होने चाहिए और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो, तो एंड टी नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ही नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर। क्लियर टिल नाउ? ओके, अब हम आते हैं, अब हमें अभी तक आई होप कि क्लियर होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल है। हमने देखा रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सेम एम्प्लाइज टू द रूट 3 एंड रूट 5 मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं उसे रिप्रेजेंट कर पाए या कोई कन्फ्यूजन रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन ब्ला 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 और एनसीईआरटी की कुछ गुड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।